مرتضیٰ بلیٹن کے آغاز میں وزیراعظم کے دورہ چین کی بات کرتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین کا دوسرا روز وزیراعظم سے چین کے قومی کمیشن برائے ترقی و اصلاحات کے چیئرمین نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سی پیک کے جاری منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان صنعتی تعاون کے فروغ کے لیے معاہدے پر دستخط بھی کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سی پیک سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہو رہے ہیں۔ گوادر کو خطے کے معاشی مرکز بنانے کے لیے کوششیں بھی جاری رکھیں گے۔ چین اور پاکستان آزمودہ دوست ہیں۔ ہماری تعاون پر مبنی شراکت ہر آزمائش پر پوری اتری۔ سی پیک منصوبوں نے پاکستان میں پائیدار ترقی کی مضبوط بنیاد رکھ دی۔ کورونا کے باوجود چین کے تعاون سے سی پیک منصوبوں پر کام جاری ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان صنعتی تعاون کے فروغ کے لیے معاہدے پر دستخط بھی کر دی گئے ہیں۔ دوست میں اور تو وعلیکم السلام شکریہ دوست میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا 4 روزہ دورہ چین۔ دوسرے روز وزیر اعظم سے چین کے قومی کمیشن برائے ترقی و اصلاحات کے چیئرمین نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سی پیک کے جاری منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا گوادر کو خطے کا معاشی مرکز بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ چین اور پاکستان آزمودہ دوست ہیں۔ ہماری تعاون پر مبنی شراکت ہر آزمائش پر پوری اتری۔ سی پیک منصوبوں نے پاکستان میں پائیدار ترقی کی مضبوط بنیاد رکھ دی ہے۔ کورونا کے باوجود چین کے تعاون سے سی پیک منصوبوں پر کام جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک پاکستان اور چین کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نے سی پیک کی بروقت تکمیل اور اس کی ترقی کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان صنعتی تعاون کے فروغ کے لیے معاہدوں پر دستخط بھی کر دیے گئے۔ ایم او یو سائن کرنے کی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان ورچوئلی شریک ہوئے۔ چین کے چیئرمین این ڈی آر سی نے کہا اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی رفتار برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں۔ چین سی پیک کو بہت اہمیت دیتا ہے، اسی لیے گزشتہ 7 سال میں پاکستان کا بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا۔ کھیل، تفریح، سیاحت کا میلہ چین میں ونٹر اولمپکس سے کچھ دیر میں آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بیجنگ کے برڈ نیس اسٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب کی تیاریاں مکمل، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان، چینی صدر، وزیر اعظم روسی صدر سمیت دنیا کے کئی عالمی رہنما شرکت کریں گے۔ ونٹر اولمپکس کا میلہ آج سے سجے گا۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں رنگا رنگ تقریب ہوگی، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان سمیت دنیا کے کئی رہنما شرکت کریں گے۔ چین پہلی بار ونٹر اولمپکس کی میزبانی کر رہا ہے۔ ایونٹ میں 91 ممالک شریک ہیں۔ 2871 ایتھلیٹ مختلف مقابلوں میں پنجہ آزمائی کریں گے۔ 15 کھیلوں میں مختلف طرز کے 109 مقابلے 4 سے 20 فروری تک جاری رہیں گے۔ بیجنگ کے علاوہ یونگکنگ اور چونگلی میں بھی ونٹر اولمپکس کا میدان سجے گا۔ ونٹر اولمپکس کے میڈلز کی جنگ میں ناروے 132 گولڈ، 125 سلور اور 111 برونز میڈل کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ امریکہ 105 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرے اور جرمنی 92 گولڈ میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ پاک فوج نے طاقت کی بنیاد پر ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ پاک فوج نے ایل او سی کی دونوں جانب کشمیری عوام کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے معاہدہ کیا۔ کسی کو بھی اپنی طاقت کے ضم میں نہیں رہنا چاہیے۔ بھارتی آرمی چیف کا خمار، پاکستان کو پھر گیدڑ بھبکیاں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ بے بنیاد اور غلط ہے۔ واضح بھی کیا کہ کشمیریوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کے خدشات کے پیش نظر جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو طاقت کے حوالے سے عزم نہیں رہنا چاہیے، کوئی بھی فریق اسے اپنی طاقت اور دوسرے کی کمزوری نہ سمجھے۔ عوامی حلقوں نے بھی سیز فائر کے حوالے سے بھارتی آرمی چیف کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت ایل او سی پر اپنے 2 جہازوں کی تباہی کی ذلت بھول گیا، پکڑے جانے والے بھارتی پائلٹ ابھینندن کو بھی بھول گئے، بھارت ایل او سی پر جوابی کارروائیوں میں ہونے والے نقصان کو بھول گیا۔ بھارتی آرمی چیف بھارتی پنجاب میں بد امنی پر کیا کہیں گے؟ مقبوضہ کشمیر میں سیکیورٹی
ड्यूटी की नाकामी पर भी क्या कहेंगे। भारत तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अखलाकियात की हदें पार कर चुका है। भारतीय आर्मी चीफ अफगानिस्तान पर दुनिया को बेवकूफ मत बनाएं। पूरी दुनिया जानती है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई। अफगानिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड 67 ट्रेनिंग कैंप काम करते रहे। और कैद में है जिंदगी पर नींद से पहले जीना है, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी नगमा ट्विटर पर शेयर कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब सराहा। ट्विटर सारिफीन नगमे को शेयर कर रहे हैं। कैद में है जिंदगी, मरने से पहले जीना है। कैद में है जिंदगी, मरने से पहले जीना है। इस धरती से तुमको निकालेंगे हम, ये है वादा हमारा, यही है कसम। इस धरती से तुमको निकालेंगे हम, ये है वादा हमारा, यही है कसम। चाहे कर ले जुल्म, चाहे कर ले सितम, ये जन्नत का टुकड़ा बचा लेंगे हम। यौम यकजहती कश्मीर से एक दिन कबल मकबूजा वादी में सिक्योरिटी सख्त, कड़े पहरे लगा दिए गए। भारतीय फोर्सेस का गश्त, श्रीनगर समेत वादी भर में फौज की नकलो हरकत बढ़ा दी गई। कश्मीरी आवाम खौफ का शिकार है, सड़कों पर सन्नाटा है, कारोबार बंद है। कश्मीरियों को जुमे की नमाज पढ़ने से भी रोक दिया गया है। कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए इंटरनेट सर्विस की बंदिश, वादी का दुनिया भर से राबता कट गया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े पर इजहार अफसोस ट्वीट किया कि मेरी दुआएं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले जवानों के लिए हैं। अल्लाह शहदा के दर्जात बुलंद और लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। नाअहल और नाकाम हुकूमत भी दहशतगर्दी से कम खतरनाक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो की तहकीकात और कमीशन तश्कील देने की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने इंक्वायरी कमीशन बनाने की मुखालिफत कर दी है। बोले एक साहिब के ऑडियो पर सारी अदलिया को कंप्रोमाइज किया कहा जा रहा है। ऑडियो स्कैंडल में तहकीकात की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत साबिक चीफ जज गिलगित बल्दिस्तान राना शमीम और नवाज शरीफ के केस पर असर पड़ेगा। चीफ जस्टिस आतहर मिनुल्लाह ने फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 53,547 तक पहुंच गई है। अदालत उज़्मा की जानिब से 16 से 31 जनवरी तक तमाम रजिस्ट्रियों में निपटाए गए और ज़ेर इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 31 जनवरी 2022 के दौरान सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर और कोयटा रजिस्ट्री में 673 नए मुकदमात दायर हुए और मजमूई तौर पर 495 मुकदमात निपटाए गए। 15 रोज में इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पर 278, लाहौर रजिस्ट्री में 248, कराची रजिस्ट्री में 73, पेशावर रजिस्ट्री में 61 और कोयटा रजिस्ट्री में 13 नए मुकदमात दायर हुए। इस दौरान प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में 464 और कराची रजिस्ट्री में 31 मुकदमात निपटाए गए, जबकि लाहौर, पेशावर और कोयटा रजिस्ट्री में कोई मुकदमा नहीं सुना गया। रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 31 जनवरी 2022 तक सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद समेत तमाम रजिस्ट्रियों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में 178 मुकदमात का इजाफा हुआ, जिससे अदालत उज़्मा में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की कुल तादाद 53,547 हो गई। अदालत उज़्मा में 30,427 सिविल मुकदमात, 28 अज खुद नोटिस, एक रेफरेंस, बुनियादी इंसानी हकूक से मुतल्लक
133 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी मुकदमात और जेल पिटिशन्स की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई है। कराची में बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज की बात करें। पाक सरजमीन पार्टी का धरना छठे रोज़ में जारी है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला मकामी हुकूमतों के इख्तियारात पर काबिज़ हैं। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकली में ही तरक्की का राज है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ PSP के धरने का छठा रोज। कारकुनान की बड़ी तादाद धरने में शरीक। मुस्तफ़ा कमाल का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था लोगों को तालीम, पानी, बुनियादी हुकूक के लिए इख्तियारात दिए जाएं। 18वीं तरमीम में इख्तियारात से मुतालिक वजाहत मौजूद है। विफाक 56% पैसे सूबों को देता है। जो 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर इख्तियारात और वसाइल जो है वो नीचे आए सूबे को, वो नीचे से सूबों के ऑर्गन्स को जाने चाहिए थे, सूबों के डिस्ट्रिक्ट को जाने चाहिए थे, शहर को जाना चाहिए था, वो नहीं गए। और अगर ये नहीं देंगे ना, अगर ये नहीं जाएंगे तो मेरा ये कहना है कि बहुत जल्द फिर इनसे ये 18वीं तरमीम के मज़े भी जो है वो इनसे वापस ले लीजिए। सूबाई खुद मुख्तारी की जो कहानी है ना, फिर सूबे भी खुद मुख्तार नहीं रहेंगे। चेयरमैन PSP ने मजीद कहा वजीर आला गटर लाइन्स, अस्पतालों और स्कूलों के भी इंचार्ज हैं। जब वजीर आला सिंध इंचार्ज हैं तो निज़ाम कैसे चलेगा? इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर आप जिस लोगों को देने वाले इख्तियारात अगर आप नहीं दे रहे तो कल को अगर ये आपसे ये इख्तियारात। और नाज़रीन, IMF प्रोग्राम से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी या नहीं? क्या IMF कर्ज की नई किस्त पाकिस्तान के माशी मसाइल हल कर सकेगी? इस हवाले से कराची के स्टॉक माहिरीन का क्या कहना है, देखते हैं मोहम्मद हमजा गिलानी की इस रिपोर्ट में। IMF प्रोग्राम के बाद मुल्की मईशत पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं, आइए जानते हैं स्टॉक एक्सपर्ट से। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक IMF पाकिस्तान से $1 अरब का कर्ज मिलता है तो सुकूक बॉन्ड्स और IMF की किस्त मिलाकर आइंदा एक हफ्ते $2 अरब से ज्यादा रकम हासिल होगी। IMF का प्रोग्राम हमारी मईशत के लिए बेहद ज़रूरी था। अब इसमें हमारी मईशत में स्टेबिलिटी आएगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि US डॉलर जो है वो कंटिन्यू डिक्लाइन साइड पे है और 2 महीने की कम तरीन सतह पे आ गई। 175 के आसपास इस वक्त डॉलर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट में तेजी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम और IMF से कर्ज की वसूली के बाद वजीर आजम का दौरा चीन मुल्क की मईशत के लिए सूदमंद साबित होगा। अब आने वाले दिनों में जो चाइना गए हैं इमरान खान साहब, वहाँ से भी $3 बिलियन की उम्मीद है कि वहाँ से भी फंड मिलेगा। इसके साथ साथ दुबई से जो ऑयल की मद में पैसे मिलेंगे, तो ये जो लगता है कि नेक्स्ट टाइम हमें जो IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा। IMF के ताज़ा ऐलान से पाकिस्तान में मुआशी बहाली और तरक्की की एक नई उम्मीद पैदा हुई है। स्टॉक एक्सपर्ट्स के मुताबिक IMF प्रोग्राम, यूरो बॉन्ड और चाइना की इन्वेस्टमेंट से मुल्की मईशत को इस्तेहकाम तो मिलेगा, लेकिन क्या इससे बेरोजगारी और महंगाई की शरह में कमी वाक़ई होगी? ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन नवेद आफ्ताब के साथ मोहम्मद हमजा गिलानी, न्यूज़ 1। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं कि हमने फोटो शूट से निकल कर हकीकी खिदमत की। माजी में तरक्की मखसूस इलाकों में होती थी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जनूबी पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है। आलमी वबा के बावजूद मईशत की तरक्की का सफ़र जारी रखा। वज़ीर आला की कोशिशों से 2 करोड़ मास्क मुफ्त दिए गए। पाकिस्तान की जो पॉलिसियाँ हैं, NCOC ने जैसी गाइडेंस इशू की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जैसी लीडरशिप दी, उससे पाकिस्तान ने दुनिया भर के ममालिक से बेहतरीन तौर पर इस वबा का मुकाबला किया और पाकिस्तान की मईशत को इस मुश्किल से निकाला और दोबारा जो मईशत की तरक्की का सफ़र है वो जारी रखा। हम अभी जनूबी पंजाब के दौरे से वापस आए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने एक तूफ़ानी दौरा किया जनूबी पंजाब का और वहाँ पर तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। ये दौरा इसलिए भी बहुत अहम था क्योंकि वज़ीर आला का विज़न ये है कि हमने पंजाब में यकसा तरक्की करनी है। हमने पंजाब के हर शहर को, हर कस्बे को, हर गांव को तरक्की के सफ़र में शामिल करना है और हमने किसी को पीछे नहीं छोड़ना। ये पंजाब हुकूमत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा एक ट्रेडमार्क है, बहुत बड़ा मिशन है कि हमने आज से पहले जो तरक्की सिर्फ मखसूस इलाकों के लिए मुख्तस की गई थी उस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना था और पूरे पंजाब में तरक्की के समरात फैलाने थे। लीगी रहनुमा अता तारड़ मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आवाज सुनाई दे रही थी
کہ قانون وہی ہوگا جو عمران خان صاحب اسلام آباد سے حکم صادر فرمائیں گے، کیونکہ وہ بادشاہ سلامت ہیں اور وہ ہر طرح سے اپنی مرضی اس صوبے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس اسمبلی کا کیا فائدہ، اور ادھر وزیر اعلیٰ کو بٹھانے کا کیا فائدہ اگر آپ نے سارے معاملات بنی گالا سے چلانے ہیں. تو یہ کمیٹی میں ہم گئے اور ابھی جو پرسوں کمیٹی کی میٹنگ ہونی تھی، اچانک اطلاع ملی کہ کمیٹی کی میٹنگ پوسٹ پون کر دی گئی ہے اور نئی میٹنگ کی اطلاع آئے گی، اور وجہ نہیں بتائی گئی نہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے. تو وجہ ایک ہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو قانون لایا گیا ہے جس میں تمام تر اختیارات سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو دیے گئے ہیں، اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، اور اس قانون کو جس طریقے سے وہ بنایا گیا ہے ایز اٹ از اسمبلی کے ذریعے پاس کروانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب نے ٹھان لی ہے کہ اس قانون کو اسی طریقے سے پاس کرنا ہے جس شکل میں اس کو ڈرافٹ کیا گیا ہے. تو یہ پنجاب کا صوبہ ہے 12 کروڑ آبادی کا، مسلم لیگ نون پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو ایسا تو ہم ہونے نہیں دیں گے. سب سے پہلے ہم جو ویس غاری صاحب نے بھی بات کی، جو اس قانون میں ای وی ایم کے تحت الیکشن کرانے کی شک ہے، اس پہ ہمارا کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں. ای وی ایم کے تحت الیکشن کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ نہ کیا جائے. ابھی تک کسی نے ای وی ایم کے حوالے سے پنجاب میں نہ قائد حزب اختلاف سے نہ ہماری پارلیمانی پارٹی سے کسی نے ای وی ایم کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. اور یہ اس کے اخراجات کون برداشت کرے گا، اس کی شفافیت کی گارنٹی کون دے گا، جو لاکھوں لوگوں کی ٹریننگ ہونی ہے وہ ٹریننگ کون کرے گا، جو عام ووٹر ہے اس کے لیے آگاہی مہم کب شروع ہوگی، اس کو شعور کیسے دیا جائے گا. تو کیونکہ یہ عادت پڑ گئی ہے الیکشن چوری کرنے کی، جس طرح ڈسکا میں ہوا، ابھی تک ڈسکا کے مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، اور اسی وجہ سے مری کا سانحہ ہوا. کمشنر گجرانوالا گلزار شاہ، جس کا نام اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ڈسکا میں اس نے الیکشن چوری کیا ہے، یہ غیر ذمہ دار افسر ہے، یہ مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہے، تو اس کو انعام کے رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اسلام آباد سے پنجاب کو کنٹرول کرتے ہیں، اگر تمام معاملات آپ نے چلانے ہیں تو وزیر اعلیٰ کا کیا فائدہ. ان کو بتائیں کہ ایم کیو ایم دھرنے پر تشدد کا مقدمہ وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف درج کروانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے. کنور نوید جمیل کہتے ہیں واقعے کے ثبوت موجود ہے، پھر بھی مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا. ایم کیو ایم رہنما کنور نوید اور محمد حسین نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی، جس میں موقف اپنایا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے پرامن دھرنے پر مراد علی شاہ کی امہ پر تشدد کیا گیا. متحدہ رہنماؤں نے کہا کہ سارے ثبوت موجود ہیں، پھر بھی مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا. آج ہم اس کی ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن جمع کرانے آئے ہیں، اور ہم اس ظالمانہ اقدام جو چیف منسٹر سندھ اور صوبائی حکومت نے کیا تھا، ہم اپنی قانونی جنگ جاری رکھیں گے، اور یہ تمام اقدامات جمہوریت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اس تشدد کی کارروائی کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جائیں، اور جن لوگوں نے فوٹیج موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز موجود ہیں، ایک ایک شخص کی تشدد کرنے والے کے چہروں کو پہچانا جا سکتا ہے. ایم کیو ایم نے درخواست میں حکومت سندھ سمیت آئی جی اور ڈی آئی جی ساؤتھ کو فریق بنایا ہے. وزیر اعظم نے چینی کمپنیز کی پاکستان میں سرمایہ کاری کو خوش آئند قرار دے دیا. چین کی سرکاری اور نجی کمپنیز کے وفد کی ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں تجارت سرمایہ کاری کے زبردست مواقع موجود ہیں. حکومت سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے، کاروبار دوست پالیسیز سے فائدہ اٹھانے کا زبردست موقع ہے. چینی کمپنیوں نے توانائی، ٹیکسٹائل، فائبر آپٹک، نیٹ ورکنگ، ہاؤسنگ، ڈیری شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کر دیا. معروف چینی کمپنی نے ٹیکنالوجی شعبے میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے.
वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी को खुशाइंद करार दिया है। चीन की सरकारी और निजी कंपनियों के वफ़द की मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा है कि पाकिस्तान में तिजारत सरमायाकारी के ज़बरदस्त मौक़े मौजूद हैं, जबकि हुकूमत साजगार माहौल भी फराहम कर रही है। कारोबार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाने का ये ज़बरदस्त मौका है। पंजगोर और नौशेरी हमलों में कम्युनिकेशन पकड़ी गई है। दहशतगर्द अफगानिस्तान और भारत के साथ राबते में थे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में इंकशाफ, कहा ये लोग किसी और जगह से भी राबते में थे। कलदम TTP की शराइत ऐसी थी जो मानी नहीं जा सकती, इसलिए मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते। दहशतगर्द अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में ये लोग मौजूद हैं। कलदम TTP के बहुत से लोग शायद इकट्ठे भी हुए हैं। पिछले कुछ अरसे में कलदम TTP ने 10 कोशिशें की हैं। कलदम TTP के 2 दहशतगर्द इस्लामाबाद में मारे गए। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर की मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है, जबकि हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आपको बता रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी तबादला ख्याल किया गया है। बात करते हैं कोरोना के हवाले से। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेज़ी से जारी है, अमवात में भी इजाफा होने लगा। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा में मुब्तला मज़ीद 48 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 29,420 हो गई है। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 6,377 नए केसेस सामने आए हैं। यौमिया केसेस की शरह 9.94% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर में कोरोना के 1,618 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और कोरोना ने दुनिया भर में क़यामत ढा दी है। एक रोज़ में 11,310 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। 30,67,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से बीमार हुए हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन की नई किस्म 57 ममालिक में फैल चुकी है। दुनिया में कोरोना की तबाहकारियां जारी। 5,30,605 अफराद कोरोना से मौत की नींद सो गए। दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 38 करोड़ 82 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में अवाम की लापरवाही के बाइस कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। आज 2.5 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हुए। 2,376 अमवात रिपोर्ट हुई। फ्रांस में भी कोरोना हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू। 2,74,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। भारत में भी कोरोना बुरी तरह फैलने लगा। 1,49,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। 1100 अफराद जान से गए। ब्राजील में 2,86,000, जर्मनी में 2,40,000 अफराद कोरोना का शिकार हुए। रूस में 1,55,000, इटली में 1,47,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। दूसरी जानिब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, स्पेन समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में कोरोना की पाबंदियों और जबरन वैक्सीन लगाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी जारी हैं। मौसम की बात करते हैं। मुल्क में जाड़े की धूम बरकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सर्द हवाओं ने डेरे डाल लिए। लाहौर में बादलों की आंख मचोली जारी, जबकि कराची में दिन में सूरज का राज बरकरार है। रात में ठंडी हवाएं चल पड़ी। उधर बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, मुल्क में अजब मौसम के गजब नजारे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश के बाद सूरज के जलवे जारी। बागों के शहर लाहौर में भी बरसात के बाद मौसम निखर गया। हर तरफ ठंड ही ठंड। नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला समेत बेशतर अजला में मौसम सर्द हो गया। पेशावर, एबटाबाद, सवात, गलियात में काली घटाएं छा गईं। कोयटा, चमन, कल्लात, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा की हवाएं कराची में भी चल पड़ी। सुबह और रात में सर्दी के डेरे, दिन में चिलचिलाती धूप। उधर बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुंजमद। आजाद कश्मीर में राबिता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर, स्कर्दू, हुंजा के पहाड़ों पर सफेदी छा गई। मलिका कोसार मरी ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। नारान, कागान, अयूबिया, नथिया गली में भी बर्फबारी के पेश नजर सयाहों को अलर्ट कर दिया गया।
और ये आपको बताएं कि भारत में मुसलमानों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले सियासी रहनुमा असदुद्दीन अवैसी कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। असदुद्दीन अवैसी पर मीरठ से नई दिल्ली जाते हुए हमला किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर फायरिंग के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। टोल प्लाजा के करीब असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर 2 अफराद ने 3 से 4 गोलियां फायर की। खुशकिस्मती से वो फायरिंग से महफूज रहे। पुलिस वाक़े की मज़ीद तहकीकात कर रही है। अमरीका मकरूज ममालिक की फहरिस्त में 12वें नंबर पर आ गया। मजमूई कर्ज $30 ट्रिलियन से तजावुज कर गया। मकरूज ममालिक में जापान सर फहरिस्त है। पाकिस्तान का 38वां नंबर है। साल 2021 के दौरान कर्ज लेने वाले ममालिक के अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक तारीख में पहली बार मजमूई कर्जा $30 ट्रिलियन से तजावुज कर गया। GDP के 130% के बराबर कर्जे से अमरीका दुनिया का 12वां मकरूज तरीन मुल्क बन गया है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में अमरीका मकरूज तरीन मुल्कों में 4थे नंबर पर है। अमरीकी विफाकी कर्जा अशरों से बहुत ज्यादा रहा और बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस ने अमरीकी खजाने पर बोझ मजीद बढ़ा दिया है। मकरूज तरीन ममालिक में जापान सर फहरिस्त है। जापान पर मजमूई कर्जा GDP का 257% के बराबर है। दूसरे नंबर पर यूनान और इटली तीसरे नंबर पर आता है। फहरिस्त में पाकिस्तान 38वें नंबर पर है, जिसका मजमूई कर्जा GDP के 77% के लगभग है।